Namaskar, I am Anand and you are watching Join for Education. Today I am going to solve the questions of exercise 5.2, chapter 5, arithmetic progression, class 10 and subject mathematics. Let's see question number 1. Question number 1, the instruction of the question number 1 is in this way: fill in the blanks in the following table. Given that A is the first term, D the common difference, and An the nth term of the AP. So all questions of this table based on the general formula of the arithmetic progression. This is An equal to A plus whole star n minus 1 into D. So An is the nth term, A is the first term, n is the number of term, and D is the common difference. If we put at a glance in question number 1 of 1, question number 1 has 5 sub questions. Then the value of A is given, the value of D is given, the value of n is given, and in this question asks us what is the value of An. Similarly, if we consider about the question number 1 of 2, then value of A is given, value of D is not given, or in this question asks us what is the value of D. Value of n is given, and an is also given. So all of these 5 questions are based on the formula an equal to A plus whole star n minus 1 into D. So let's see the solution of the question number 1. So question number 1, the value of A is 7, D is 3, n is 8, and an equal to what or ask in this question. So first of all, we recall this general formula or most important formula of the arithmetic progression according to the standard of class 10. An equal to A plus n minus 1 into D. Now we put the value of A, D, n, and we have no problem to find out the value of An. So the value of A is 7. After that, written here plus, therefore I have also written here plus. The value of n is 8, here written minus, I have written here minus 1 into the value of D is 3. After the calculation, we get the next step, that is 7 plus 8 minus 1 equal to 7 into 3. So 7 into 3 equal to 21, and 7 plus 21 equal to 28. So here an equal to 28. So I hope that there is no problem to understand the solution of the question number 1 to 1. All questions of question number 1 based upon an equal to A plus n minus 1 into D. Similarly, question number 2 of 1 is the value of an is given, A is given, value of n is given, an is also given, and ask us what is the value of common difference or D. So first of all, we recall the general formula. After that, we put the value of an, the value of an is 0, and the value of A is minus 18, and the value of n is 10, and the value of D is not given. So we move or write minus 18 in the left hand side, then minus will be plus or changed into positive. So right, I have written here 18, and 10 minus 1 equal to 9 into D equal to 9D. So when we write 9 move in the left hand side, then multiplication changed into division. So here D will be 18 by 9, and 18 cancelled by 9, then we get 2. So here D, the value of D will be 2. Hence the common difference D equal to 2. Hope that there is no problem to understand the solution of the question number 1 of 2. Similarly, question number 1 of 3. The value of D is given, value of n is given, value of an is given,
Then we recall the general formula an equal to a plus n minus 1 into d. After putting the value, we get the first step. The value of an is minus 5. The value of a is not given or asked in this question. The value of n is 18 and the value of d is minus 3. So this step will be minus 5 a plus 18 minus 1 equal to 17 into minus 3. So this step will be minus 5 a minus plus minus, I have written here minus 7 3 17 3 51. So here 51. Therefore a equal to 51 move in the left hand side, then minus 51 changed into plus 51, and this is the minus 5. I have written here minus 5. 51 minus 5 equal to 46. So the value of a is 46. Hope that there is no problem to understand the solution of question number 3 of 1. Similarly, question number 4, the value of a is given, value of d is given, the value of an is given, and ask us what is the value of n. So first of all, we recall the formula an equal to a plus n minus 1 into d. After that, we put the value of an, this is 3.6, value of a is minus 18.9. I have written here n minus 1. In this question, ask us what is the value of n. After that, I have written here the value of d, which is 2.5. After the simple calculation, we move minus 18.9 in the left hand side, then minus changed into plus. So here will be 3.6 plus 18.9. Then in the right hand side, we have n minus 1 into 2.5. So after that, n minus 1, when 2.5 move in the left hand side, then this one will be 22.5 by 2.5. Now we cancelled out the common factor, then we get n minus 1 equal to 9 and n equal to 10. So we move minus 1 in the right hand side, then we get here 9 plus 1 equal to 10. Hence the value of n is 10. Hope that there is no problem to understand the solution of question number 4, 1 to 4. Let's see question number 1 of 5. A, the value of A is 3.5, value of D is 0, value of N is 105, and in this question, what is the value of AN? First of all, we recall the general formula AN equal to A plus N minus 1 into D. Now putting the value, here AN equal to the value of A is 3.5 plus the value of N is 105 minus 1 into 0. So 105 minus 1 equal to 104 into 0 equal to 0. So 3.5 plus 0 equal to 3.5. Hence the value of AN is 3.5. Hope that there is no problem to understand the solution of question number 5 of question number 1. So all questions, we solved all questions of question number 1, and hope that there is no problem to understand the solution of question number 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3, and 1, 2, 4, and 1, 2, 5. So all questions are based on formula an equal to a plus n minus 1 into d. So I solve all questions of question number 1 in English medium, but the student requested to me use bilingual language Hindi, both Hindi and English. तो देन मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन, और मैंने पहले ही एक्सरसाइज 5.1 के सभी प्रश्नों को हल कर दिया था। आज मैं एक्सरसाइज 5.2 के पहला प्रश्न, जिसमें 5 अलग अलग प्रश्न है और ये सारे के सारे प्रश्न अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल फार्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर बेस्ड है। तो यहाँ पर यदि पहला क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पर an पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर यदि हम an इक्वल टू यदि जनरल फार्मूला को रिकॉल करते हैं
तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक एक करके जो जो वैल्यू दिया हुआ है पुटअप कर देंगे और एक सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो हमको ए एन का वैल्यू आ जाएगा। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 to 1। तो दिस इज द बाइलिंगुअल लैंग्वेज, बहुत आई यूज्ड बहुत हिंदी एंड इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का उपयोग करते हुए इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रश्नों को मैंने इंग्लिश में ही सॉल्व किया और होप दैट आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, थोड़ा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर यदि आपका कोई दिक्कत है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई शैल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम और इशू और क्लियर योर डाउट। तो मैं अपना ट्राई माई लेवल बेस्ट, मेरा जो भी लेवल है उसका सबसे बेस्ट लेवल को मैं ट्राई करूँगा और आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। अगर आप इस प्रश्नों का सॉल्यूशन पीडीएफ के फॉर्म में ऑब्टेन करना चाहते हैं तो जॉइन फॉर एजुकेशन का अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और यह व्हाट्सएप ग्रुप में प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे अपने टाइम टेबल के अनुसार, व्हाट्सएप ग्रुप का अपना जो टाइम टेबल है उसके आधार पर प्रत्येक दिन स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में ग्रुप में जुड़े सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ग्रुप में जुड़ने का बहुत ही आसान तरीका है, आप एक रिक्वेस्ट हमको दे दें, व्हाट्सएप नंबर भेजें, आप अपना नाम भेजें, आप अपना क्लास भेजें, आप अपने विद्यालय का नाम भेजें, आप अपना बोर्ड का नाम भेजें, आप अपना लोकेशन भेजें। अगर आप 11 और 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आप स्ट्रीम भेजें कि आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं। तो इट इज़ वेरी इजी टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ द जॉइन फॉर एजुकेशन। आप जुड़िए, वहाँ पर आपको ये सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन एज ए पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, वो भी प्रतिदिन अपने टाइम टेबल के आधार पर, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। द इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। This is the instruction. If we question number 2 has two question, if we consider about one of question number 2, यदि इसके पहले क्वेश्चन को कंसिडर करें तो ये क्वेश्चन भी जो है आपका जनरल फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग रिकॉल करेंगे, अगर इसमें देखें इस सीरीज को तो ए 10 हो जाएगा और डी आपका 7 माइनस 10 इक्वल टू -3 हो जाएगा। और यहाँ पर 30 टर्म बोल रहा है, मतलब ए 30 पूछ रहा है, देयरफॉर एन इक्वल टू यहाँ 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि 30 टर्म ए 30 क्या होगा, तो एन का वैल्यू 30 हो जाएगा, ए का वैल्यू 10, डी का वैल्यू -3, और यदि सारे वैल्यू को उस फार्मूला में पुट कर दे तो हम लोग ए 30 का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ए 30 इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस 29d। So it means that a plus 29d, it means that 10 plus -3 into 30। फिर अगर हम कैलकुलेशन कर दें तो 10 माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, उसके बाद आपका 29 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 87। 87 में अगर हम 10 को माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा -77। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर 2 का वो सी हो जाएगा। लेट्स सी द सॉल्यूशन। यहाँ सॉल्यूशन को देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 to 1 आपका 10 7 4 गिवन है, तो यहाँ ए 10 हो गया, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 10 इक्वल टू -3 हो गया, और फिर यही जनरल फार्मूला है, इसको रिकॉल कर लिए, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ए 30, इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ एन इज 30, द वैल्यू ऑफ ए इज 10, देखिए 10 पुट कर दिए, फिर प्लस, फिर एन का वैल्यू 30, फिर -1 और डी का वैल्यू -3। अगर सिंपल कैलकुलेशन करते हैं तो हमको ये स्टेप मिलता है, ए 30 इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू -3। आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन वी गेट दिस स्टेप एंड दिस इज 10 माइनस 87 इक्वल टू -77। ऑलरेडी इसको ऑरली हम लोग यहाँ पर अभी सॉल्व किए थे, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा, और पहले ही हम लोग यहाँ पर देखिए
सी में टिक लगा चुके हैं। सिमिलरली हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर सकते हैं, काफी इजी है, देयर इज नो प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। A11 इक्वल टू हो जाएगा A+10D। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये सीरीज जो दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ A इज -3 और वैल्यू ऑफ D क्या हो जाएगा, -12 -3 इक्वल टू हो जाएगा -12 +3। अगर 3 में हाफ चला जाएगा तो बच जाएगा 2.5, तो D का वैल्यू हो जाएगा 2.5। इट मीन्स दैट 2 2 जा 4 +1 5/2 हो जाएगा। तो हमारे पास A का वैल्यू है, D का वैल्यू है, N का भी वैल्यू है, तो हमको A11 फाइंड आउट करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके लिए हम लोग फिर उसी फार्मूला को रिकॉल कर लेंगे। देखिए ये फार्मूला को हम लोगों ने रिकॉल कर लिया और वैल्यू पुट कर दिया। A का वैल्यू -3, N का वैल्यू आपका 11 है, 11 पुट कर दिए और फिर आपका -1 और D का वैल्यू देखिए हम लोग यहाँ कैलकुलेट किए थे 2.5, यहाँ भी कैलकुलेशन दिखा दिया गया है। D इक्वल टू A2 - A1, तो यहाँ वैल्यू देखिए पुट कर दिए। A2 का वैल्यू -12 है, A1 का वैल्यू -3 है, कैलकुलेट किए तो 5/2, यहाँ भी देखिए 5/2 पुट कर दिए। अगर हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10 और 5 × 5 इक्वल टू 25। आई हैव रिटन हियर 25 -3 इक्वल टू हो जाएगा 22। सो 11th टर्म ऑफ द गिवन विल बी 22। तो यहाँ देख लेते हैं 22 कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका 22 जो है बी ऑप्शन है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 will be 22. So hope that there is no problem to understand the solution of the क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के भी सॉल्यूशन को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि कोई दिक्कत है तो प्लीज डू राइट इनटू द कमेंट बॉक्स। आई शैल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू क्लियर योर डाउट। मैं आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। अगर आपको और यदि डाउट है तो मैं प्रत्येक संडे को यूट्यूब में लाइव क्लास में आता हूं। आप मेरे लाइव क्लास को अटेंड कीजिए, वहां पर लाइव कमेंट कीजिए। मैं कौन सा स्टेप को आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, मैं आपके रिक्वायरमेंट के आधार पर उसी स्टेप पर फोकस करूंगा और उसको आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप देखते हैं तो ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है वही जनरल फार्मूला an इक्वल टू A + n-1 इंटू डी पर ही बेस्ड है। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, यहाँ सेकंड टर्म पूछा जा रहा है। व्हाट इज A2, A1 आपका है और आपका A3 है। A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा A + 2D हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हमको यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन मिलेगा जिसमें वेरिएबल आपका A और D का होगा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ऑलरेडी हम लोग अर्लियर चैप्टर में ही सॉल्व कर चुके हैं इसी क्लास में। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अलजेब्रिक मेथड से यदि हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास 3 मेथड है। फर्स्ट वन इज द सब्स्टिट्यूशन, सेकंड इज द एलिमिनेशन एंड थर्ड वन इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो तीनों में से किसी भी मेथड का यूज करते हुए हमको ए और डी का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है और इस क्वेश्चन में जो भी चीज पूछा जा रहा है इजिली हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से हमको यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगे, किसी किसी क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे। यदि ए का वैल्यू दिया है तो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर यदि हम कंसिडर करें तो यहाँ पर हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिलेगा। फिर हम वही तीनों में से किसी एक मेथड का यूज करते हुए ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर जो भी यहाँ मिसिंग टर्म को पूछा जा रहा है हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, देख लेते हैं। फ्रॉम क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ ए इज 2 एंड A3 इक्वल टू 26। अगर A3 का वैल्यू आप इधर पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो A + 2D हो जाएगा। तो A + 2D इक्वल टू आपका हो जाएगा 26। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, इसी जनरल फार्मूला पर, तो A3 इक्वल टू आपका हो गया 2 + 3 - 1 इंटू डी। तो 26 ही वैल्यू दिया हुआ है और ऑलरेडी बोले थे आपका A + 2D हो जाएगा। तो A का वैल्यू यहाँ 2 है
प्लस 2d। अब d का वैल्यू जो है हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे। जब 2 को लेफ्ट हैंड साइड में मूव करवाएंगे या लिखेंगे तो 26 माइनस 2 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा 24 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 2d हो जाएगा। अब 2 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव करवाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो d इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 24/2। तो अब 2 से यदि हम इसको कैंसल आउट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा 12। सो द कॉमन डिफरेंस इज 12। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, तो a2 हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। वी हैव नो प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a2। a2 इक्वल टू a प्लस डी हो जाएगा, या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n का वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 और d का वैल्यू आपका 12 है, तो 2 प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू 12 इक्वल टू 12। 12 प्लस 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 14। सो द सेकेंड टर्म और मिसिंग टर्म ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 14। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि दिक्कत हुआ है तो प्लीज डू राइट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिखिए। आई शैल ट्राई my level best to pacify or clear your doubt. Let's see the question number 3 to 2। अगर 3 to 2 पर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर the value of a is not given, first term is not given, second term is given and third term is given. With the help of the second term we have the equation a plus 2d, a3 equal to a1 a2 equal to a plus d। तो देखिए यहाँ पर a प्लस डी इक्वल टू क्या है आपका 13 है, अकॉर्डिंग टू दिस जनरल फार्मूला। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इट मीन्स दैट a4 इक्वल टू 3 एंड 3 इक्वल टू a प्लस 3d। देखिए a प्लस 3d। नाउ वी हैव टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब हम लोग यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अलजेब्रिक मेथड में जो सॉल्यूशन करते हैं उसमें से किसी एक मेथड को लगा देंगे, या फिर इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे या 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन योर विल, जो आपके इच्छा पर निर्भर करता है। आपको जो इच्छा कर रहा है वही कर दीजिए। या तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या इक्वेशन नंबर 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 से 1 को ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पहले 2 को लिख दिए, ठीक है, यहाँ पर, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर हम लोग 1 को लिखेंगे, तो यहाँ पर 3 माइनस 13 इक्वल टू हो जाएगा -10। देखिए राइट हैंड साइड में ए कैंसल्ड आउट हो जाएगा और फिर आपका हो जाएगा 3d माइनस डी इक्वल टू हो जाएगा 2d। देखिए यहाँ पर 2d, जब आपका 2 मूव करेगा लेफ्ट हैंड साइड में तो ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन हो जाएगा, और -10 जो है 2 से कैंसल्ड आउट हो जाएगा और हमको मिल जाएगा d इक्वल टू -5। अब देखिए हमको d का वैल्यू मिल गया। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ d एनी वन ऑफ दिस टू इक्वेशन, 1 या 2, जिसमें आपको इच्छा करता है पुट कर दीजिए d का वैल्यू। तो जैसे ही आप देखिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को ही रिकॉल किया गया है। इक्वेशन नंबर 1 आपका है 13 इक्वल टू a प्लस डी। देखिए यहाँ a लिख दिए और d का वैल्यू -5 था, -5 लिख दिए। माइनस प्लस माइनस होता है। अब जब ये -5 को लेफ्ट हैंड साइड में मूव करवाए तो 13 प्लस 5 हो जाएगा, 13 प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 18, और आपका लेफ्ट हैंड साइड में a रह जाएगा, तो a इक्वल टू आपका 18 हो गया। आपके पास d का वैल्यू आ गया, हमारे पास a का वैल्यू आ गया। तो अब हमको जो मिसिंग टर्म है, पहला टर्म पूछ रहा है और थर्ड टर्म। पहला टर्म तो आपका a का ही वैल्यू पूछ रहा है तो 18 हो जाएगा। अब तीसरा टर्म जो है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, a3 इक्वल टू a प्लस 2d लिख देंगे। देखिए a और यहाँ पर 2d हो गया। तो जैसे ही यहाँ पुट करेंगे a इक्वल टू आपका 18 हो गया, फिर माइनस और 2 5 जा 10, तो 18 में 10 चला जाएगा तो आपका क्या हो गया, 8 हो गया। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 to 2।
क्वेश्चन नंबर 3 to 2 को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर यदि आपको दिक्कत है तो प्लीज डू राइट इनटू द कमेंट बॉक्स विदाउट एनी एजिटेशन। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई शैल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर योर डाउट। या फिर हमारे ज्वाइन फॉर एडुकेशन के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पर आपको ये सारे सोल्यूशन का पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा, सारे चैप्टर का, सारे एक्सरसाइज का, सारे 9 to 12 के सभी सब्जेक्ट का। आप जुड़िए। जुड़ने का जो प्रोसेस है अभी हम बताएं, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस ज्वाइन टू मी इन माय व्हाट्सएप ग्रुप एंड आई शैल प्रोवाइड a study material in the PDF form. Let's see the question number 3 to 3. 3 to 3 को भी देख रहे हैं तो यहाँ पर भी भाई दो इक्वेशन फॉर्म कर देना है। फर्स्ट सेकंड मतलब a2 इक्वल टू a प्लस डी हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन। और फिर आपका हो जाएगा a3 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2d। लेकिन हमको यहाँ पर देखिए दिया हुआ है a और हमको दिया हुआ है फोर्थ टर्म, तो a तो ऑलरेडी यहाँ पर है। और दूसरा यदि है आपका तो a4 इक्वल टू a प्लस 3d, वहाँ a का वैल्यू पुट कर देंगे, d का वैल्यू आ जाएगा। तो जब हमको a और d का वैल्यू आ जाएगा तो वी हैव नो प्रॉब्लम टू फाइंड आउट द दिस इज द सेकंड टर्म एंड दिस इज द थर्ड टर्म। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह से सॉल्व किए हैं। a इक्वल टू 5, ऑलरेडी मेरे पास सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन का पीडीएफ फॉर्म है, उसी पीडीएफ फॉर्म को मैं यहाँ पर वीडियो लेक्चर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। यदि आपको इसको समझने में दिक्कत है तो प्लीज ज्वाइन टू मी इन माय लाइव क्लास एवरी संडे इन यूट्यूब के लाइव क्लास में आप मेरे साथ जुड़िए, या व्हाट्सएप का एक ग्रुप है ज्वाइन फॉर एडुकेशन के ही नाम पर, वहाँ पर आप जुड़िए। या फिर मेरा एक फेसबुक में पेज है ज्वाइन फॉर एडुकेशन के नाम पर, वहाँ पर भी आप विजिट कीजिए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मेरा anandprajapati.blogspot.com के नाम से एक ब्लॉग भी है, वहाँ पर भी आपको ऑनलाइन टेस्ट की सामग्री से लेकर के बहुत सारी सामग्रियाँ मिल जाएगी, टीचिंग मटेरियल्स। और मेरा एक आनंद मैथ क्लासेस.blogspot.com के नाम से एक और ब्लॉग है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर केवल आपको मैथ के एक्सरसाइज का प्रॉब्लम मिल जाएगा। तो यू जॉइन टू मी with the help of WhatsApp group, with the help of YouTube channel, with the help of Facebook page and with the help of any one of these two blog। या सारे चीज से आप लीजिए, आप ही के लिए यह स्टडी मटेरियल को प्रिपेयर किया जा रहा है टू द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स विदाउट एनी कॉस्ट। यहाँ पर कोई भी कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी रिक्वायरमेंट है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके रिक्वायरमेंट के आधार पर मैं वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करूंगा और पब्लिश करूंगा, और आपके कॉस्ट को मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि अभी मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं, और बोथ सीबीएसई एंड जैक आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज और दिस चैप्टर दोनों, या फिर अदर स्टेट का बोर्ड भी जो है अगर ये चैप्टर है तो इस चैप्टर से प्रश्न पूछता है। आईसीएसई बोर्ड में भी यदि ये चैप्टर है तो वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर को सुन करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। सो सी हियर a4 इक्वल टू 19/2। लोग कंटिन्यू करते हैं सॉल्यूशन को। देखिए यही जनरल फार्मूला था, इसी को हम लोग रिकॉल करते हैं हमेशा। ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज जनरली बेस्ड ऑन an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a4 ऑटोमेटिकली हो जाएगा a प्लस 3d। तो a4 का वैल्यू आपका 19/2 है और a का वैल्यू 5 है और 4 माइनस 1 ये आपका 3d हो गया। जैसे ही हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं तो 5 जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 19/2 माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू 3d। अगर कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ 3/2 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3/2। अब d का वैल्यू हमको मिल गया। फिर यहाँ से देखते हैं a2 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस डी, पहले ही बता चुके हैं। और 5 प्लस 3/2 इक्वल टू हो जाएगा 13/2। 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 5 जा 10 प्लस 3 13/2। a3 का वैल्यू आपका हो जाएगा a प्लस 2d। a का वैल्यू आपका 5 है, फिर यहाँ 2 है तो 2 पुट कर दिए। फिर d का वैल्यू 3/2 है,
एक सिंपल कैलकुलेशन के बाद हमको मिल जाएगा यहाँ पर 2 कैंसल आउट कर देते हैं तो 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 हो जाएगा। देयरफॉर द मिसिंग टर्म जो है आपका 13/2 और 8 हो जाएगा। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरह से है। आपका ए का वैल्यू दिया हुआ है और ये आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, A6 का भी वैल्यू है। A6 इक्वल टू आपका हो जाएगा A प्लस 5D, मतलब 6 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 5D। फिर A का वैल्यू आप -4 पुट कर देंगे, इस तरह से D का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो A6 आपका दिया हुआ है, ऑलरेडी बता चुके हैं। आपका A6 इक्वल टू बोले थे A प्लस 5D, तो यहाँ यदि आप कैलकुलेट करते हैं 6 - 1 इक्वल टू 5 और ये फिर D, तो 5D हो जाएगा। A का वैल्यू पुट कर दिए -4 प्लस 5D। ये -4 जो है लेफ्ट हैंड साइड में मूव किया तो 6 प्लस 4 इक्वल टू आपका 10 हो गया, 10 इक्वल टू 5D और D का वैल्यू यहाँ पर हो गया आपका 2। अब आप हमारे पास A का भी वैल्यू है और हमारे पास D का भी वैल्यू है, तो बाकी मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं है। मिसिंग टर्म आपका A और D पर ही डिपेंड करता है। तो आपका A2 इक्वल टू A प्लस D, तो A का वैल्यू -4, D का वैल्यू 2, अगर कैलकुलेट करते हैं तो -2 एंड सो ऑन। Hope that there is no problem to solve question number 4 of question number 3 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने में भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के 5 को भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड टर्म है, यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, A6 भी है। तो यहाँ से दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन बनेगा, यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन बनेगा। तो इस तरह से हमको दो लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। फिर दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहाँ से A और D का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक ये आपका फर्स्ट टर्म है तो ये आपका सेकंड, ये थर्ड है तो A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D, A प्लस 4D का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे तो मिसिंग टर्म का वैल्यू आ जाएगा। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 to 5 को भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। A2 32, A6 20 -22, यही जनरल फार्मूला है। A प्लस n - 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर दिया A2, तो A2 इक्वल टू देखिए A प्लस D इक्वल टू 38। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। A6 A प्लस 5D -22 इक्वल टू आपका इक्वेशन नंबर 2। अब कर दे इक्वेशन नंबर 1 को 2 से सबट्रैक्ट कर दे या 2 को 1 से सबट्रैक्ट कर दे या फिर एलिमिनेशन मेथड लगा दे या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दे या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा दे। दैट इज डिपेंड अपॉन योर विल। आप ये मेथड को लगा करके आप A और D का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। यदि आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं किए हैं तो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से रिलेटेड भी वीडियो लेक्चर है। आप हमारे यूट्यूब के चैनल में उस वीडियो लेक्चर को फाइंड आउट कीजिए और देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो D इक्वल टू मेरा -15 हो गया और फिर D का वैल्यू किसी दोनों में से कोई इक्वेशन में रख देने से फिर मेरा A का वैल्यू आ जाएगा जो 53 है। उसके बाद जो मिसिंग टर्म है जैसा जैसा है फाइंड आउट कर देंगे। A इक्वल टू आपका 53, A3 इक्वल टू A प्लस 2D हो जाएगा, वैल्यू पुट करने के बाद 23 हो जाएगा एंड सो ऑन। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू सॉल्व द क्वेश्चंस नंबर 3 to 5 के भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप आराम से समझ गए होंगे एंड होप दैट इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इनटू द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 को यदि देखते हैं तो यहाँ बोलता है विच टर्म ऑफ AP इज 78। इट मीन्स दैट यहाँ पर an का वैल्यू 78 है बट n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ से आपका a का वैल्यू 3 है
डी का वैल्यू 8 माइनस 3 तो 5 हो जाएगा। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूला को रिकॉल करेंगे, पुट कर देंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। तो ये देखिए ए एन के वैल्यू को फॉर्मूला को रिकॉल कर लिए। ए एन का वैल्यू 78 है, यहाँ पुट कर दिए, इक्वल ए का वैल्यू 3 है, एन माइनस 1, डी का वैल्यू 5। ये 3 को लेफ्ट हैंड साइड में मूव करवा दिए तो 78 माइनस 3 इक्वल टू यहाँ देखिए 75 हो गया। फिर आपका राइट हैंड साइड में रह गया एन माइनस 1 इंटू 5। अब देखिए 5 को लेफ्ट हैंड साइड में मूव करवा दिया तो 75/5 इक्वल टू आपका 15 हो गया, और आपका इधर रह गया एन माइनस 1। अब माइनस 1 को राइट हैंड साइड में मूव करवा दिए तो 15 प्लस 1 इक्वल टू 16 हो गया। तो इन दिस वे वी कैन सक्सीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। इस तरह से हम लोगों ने एन का वैल्यू निकाल लिया। एंड होप दैट, आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि दिक्कत है तो फिर वही बोलूँगा कि आप हमारे हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ट्राई करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने का। सिमिलरली यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल उसी पर बेस्ड है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। बोलता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। देखिए ए एन का वैल्यू आपका दिया हुआ है 205, ए का वैल्यू दिया हुआ है। अगर 13 में 7 को माइनस कर देते हैं या 19 में 13 को माइनस कर देते हैं तो डी का वैल्यू आ जाएगा। तो हमारे पास ए एन का वैल्यू है, हमारे पास ए का वैल्यू है, हमारे पास डी का वैल्यू है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फॉर्मूला को रिकल करके हम आसानी से एन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला को रिकॉल कर लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ए एन का वैल्यू आपका 205 है, 205 पुट कर दिए। ए का वैल्यू 7 है, 7 पुट किए, फिर यहाँ लिख दिया एन माइनस 1, और डी का वैल्यू आपका 6 है, मतलब 13 माइनस 7 इक्वल टू 6। जैसे ही कैलकुलेशन किए एन का वैल्यू आ गया 34। होप दैट ये दो स्टेप आप आराम से समझ गए होंगे। पीछे बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से हम सॉल्व किए। सो देयरफॉर द गिवन सीरीज है 34 टर्म। तो दिए गए सीरीज में कितने टर्म है? 34 टर्म है। यहाँ भी उसी तरह से कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ए का वैल्यू है आपके पास, और 15.5 में यदि आप 18 को माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा -5/2। ये आपका डी हो जाएगा, ये आपका ए हो गया। जब हमारे पास ए और डी का वैल्यू आ गया और ए एन का वैल्यू यदि दिया हुआ है तो हम एन का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए फिर से देखिए फॉर्मूले को रिकॉल कर लिए। ए एन का वैल्यू पुट कर दिए, ए का वैल्यू पुट किए 18, एन माइनस 1, और डी का वैल्यू -5/2। अब देखिए यहाँ पर -47, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो -18 हो गया। राइट हैंड साइड में ये टर्म बच गया मेरा, -47 -18 इक्वल टू हो गया -65, एन माइनस 1, और फिर देखिए डी का वैल्यू -5/2। फिर n माइनस 1 इक्वल टू मेरा हो गया -65 इंटू, अब 2 करना है तो 2 कर दे, और बाई 5 हो जाएगा। अगर ये माइनस माइनस कैंसल्ड आउट, और 5 से अगर इसको कैंसल्ड आउट करते हैं तो ये 26 हो जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू 26। अब जैसे ही 1 जो है राइट हैंड साइड में मूव करेगा तो माइनस प्लस में चला जाएगा, 26 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 27। तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 27। तो इस सीरीज में आपका कितने टर्म है? तो 27 टर्म है। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप आराम से समझ गए होंगे। अगर दिक्कत है तो प्लीज डू राइट इनटू द कमेंट बॉक्स। अब फिर से आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी दिस वन। यहाँ से ए मिल जाएगा, यहाँ से डी मिल जाएगा। तो 8 माइनस 11 इक्वल टू -3। ए मिल गया, डी मिल गया, हम लोग इसको ए एन सपोज कर लेंगे और एन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यही फार्मूला को रिकॉल करेंगे, क्वेश्चन इसी फार्मूला पर बेस्ड है। ए एन का वैल्यू -150, ए का वैल्यू 11, ये देखिए डी एन माइनस 1, और डी का वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस 11 इक्वल टू -3।
सेकेंड स्टेप यहाँ पर यदि कैलकुलेट करते हैं तो 11 फिर माइनस प्लस, यहाँ माइनस हो गया -3n, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर यहाँ पर देख लेते हैं ये माइनस 11 जो है अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में और 3 भी लेफ्ट हैंड साइड में आता है तो कैलकुलेट हो करके आपका हो जाएगा -164 इक्वल टू -3n। माइनस माइनस कैंसल आउट कीजिए और देखिए n इक्वल टू हो गया 164/3। देखते हैं 1643 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 4 6 10 प्लस 11 के 11 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स दैट यहाँ पर एडिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर द गिवन नंबर इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 3। तो हम जानते हैं कि n का नंबर जो है आपका होल होगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो इट मीन्स दैट इस सीरीज में 150 जो है कोई भी टर्म नहीं होगा। इन दिस सीरीज -150 इज नॉट एनी टर्म। तो यही चेक होके आ गया। तो 1-150 is not a term of this AP. Of that, there is no problem to understand the solution of this question. Let's see question number 7. Question number 7 भी काफी आसान है। यहाँ से भी आपका 2 इक्वेशन होगा और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन मेथड को यूज करते हुए इसको सॉल्व कर लेंगे। 31st टर्म आपका दिया हुआ है, 11th टर्म भी, सॉरी 31st टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। 11th टर्म आपका दिया हुआ है, 16th टर्म भी आपका दिया हुआ है। 11th टर्म इट मीन्स दैट 38 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 10d, d कॉमन डिफरेंस a फर्स्ट टर्म। 16th टर्म इट मीन्स दैट 73 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 15d। देख लीजिए a प्लस 10d फर्स्ट इक्वेशन, फिर a प्लस 15d आपका सेकंड इक्वेशन। फिर लगा दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 73 माइनस 38 इक्वल टू आपका 35 हो जाएगा। ए कैंसल आउट, 15d माइनस 10d इक्वल टू 5d हो जाएगा। अगर यदि आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो आपका 5 जो है लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 35/5 इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो d का वैल्यू 7 हो गया। अब d का वैल्यू ये दोनों में से नो you can put any one of these two the value of d to find out the value of a। तो दोनों में से किसी में भी आप d का वैल्यू पुट कीजिए, दैट इज डिपेंड अपॉन योर विल, आपके इच्छा पर निर्भर करता है, और a का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में ही d का वैल्यू पुट कर दिया गया आपका 38, फिर a, फिर 10 और d का वैल्यू 7। इट मीन्स दैट a इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस 70। तो जैसे ही 38 माइनस 70 करेंगे तो इक्वल टू हो गया -32। अब नो यू हैव नो प्रॉब्लम टू फाइंड आउट A31। आपके पास A भी आ गया, D भी आ गया, तो A31 फाइंड आउट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो A31 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 31 माइनस 1 मैंने 30D। तो A का वैल्यू -32, फिर यहाँ सब्ट्रैक्शन के बाद 30 और D का वैल्यू 7। तो -32 प्लस 210 इक्वल टू 178। हैंस 31st टर्म इज 178। इस तरह से इसका 31वां पद हो जाएगा 178। Hope that there is no problem to understand the solution of question number 1 to 7. My next video lecture will be related to the solution of rest problem of this exercise. मेरा अगला वीडियो लेक्चर जो होगा इसी चैप्टर के रेस्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को लेकर के होगा। टिल देन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तब तक आप सभी को धन्यवाद। और फिर मैं आपसे कहूँगा कि यदि ये वीडियो लेक्चर आपको ठीक लगा तो आप अपने सराउंडिंग के अदर स्टूडेंट तक इसको एक्सेस करवा दीजिए, पहुंचा दीजिए, ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिले। अगर यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो जो प्रोसेस बताया आप उसको फॉलो कीजिए। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़िए और प्रतिदिन वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल PDF फॉर्म में प्रत्येक दिन 5:30 बजे से पहले मिल जाएगा, अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल ऑफ ज्वाइन फॉर एडुकेशन। ज्वाइन फॉर एडुकेशन अपना टाइम टेबल फिक्स किया है कि कौन सा दिन कौन सा सब्जेक्ट का आपका PDF मटेरियल देना है, तो उसके आधार पर आपको मिल जाएगा। तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ द audience and students who are interested in physics,
if you think that this solution is useful to you, please do access other student who need such types of the solution. So once again, I thanks to all of you. Thank you very much to stay with me till the last step solution of question number 1 to 7 of exercise 5.2 chapter 5 arithmetic progression. So thanks to all of you. Thank you very much.